Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Now students, I am going to explain you lesson paragraph wise. The years hurried on and brought white hairs upon the head of Ernest and made wrinkles across his forehead and furrows in his cheeks. He was an old man, but not in vain had he grown old. More numerous than the white hairs on his head were the wise thoughts in his mind. And Ernest has ceased to be obscure, unsought for, undesired, had come the fame which so many seek. स्टूडेंट्स कई साल बीत गए थे और अर्नेस्ट अब एक बूढ़ा आदमी था जिसके सिर पर सफ़ेद बाल थे। उसके माथे पर रिंकल्स यानी झुर्रियाँ रिंकल्स और गालों पर गहरी रेखाएं थी। सभी लोग जो उसे इस मुकाम पर लाए वह बेकार नहीं गया, क्योंकि वह इतना समझदार हो गया था कि बुद्धिमान विचारों की संख्या उसके सिर पर सफ़ेद बालों की संख्या से अधिक हो गई थी। वह अब आलोकप्रिय नहीं था यानी फेमस नहीं था। हालांकि उन्हें वह प्रसिद्धि मिली जो कई लोगों को मिली। He had become famous beyond the limits of the valley. College professors and even the active men of cities came from far to see and converse with Ernest, and he received them with gentle sincerity and spoke freely with them of whatever came uppermost or lay deepest in his heart or their own. While they talked together, his face would brighten, unaware, and shine upon them as with a mild evening light. वास्तव में वह घाटी के बाहर भी जाने लगा था। शहरों, कॉलेजेस के प्रोफेसर और दूर दूर के कई लोग उन्हें देखने आते थे और अर्नेस्ट के साथ बातचीत करते थे। उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ उनका स्वागत किया और उनके साथ अपने शुद्धतम दिल से बातचीत की। शुद्धतम दिल से बातचीत इट मीन्स डीपेस्ट इन हिज हार्ट। जो भी उनके मन में आया या यहाँ तक कि अपने गहन विचारों को साझा किया। जब वह लोगों से बात करता था तो उसका चेहरा ऐसा चमक उठता था कि वह दूसरों पर चमक उठता था, जैसे कि वह एक हल्की शाम हो और उसके साथ कोई अनहोनी हो। While Ernest had been growing old, God had granted a new poet to this earth. He too was a native of the valley, but had spent the greater part of his life in distant cities, pouring out his sweet music everywhere. Neither was the great stone face forgotten, for the poet had celebrated it in a poem. The songs of this poet found their way to Ernest. He read them after his customary toil, seated on the bench before his cottage door. As he read, he his eyes to the mountain. जैसे जैसे अर्नेस्ट हर साल के साथ बड़ा होता गया, उसे उस कवि के बारे में पता चला जो ईश्वर की दया से, कृपा से इस धरती पर आया था। लेकिन कवि घाटी के मूल निवासी थे। उन्होंने अपने जीवन का अधिकतर समय दूर के शहरों में बिताया था। अपने संगीत के साथ उन्होंने आशीर्वाद दिया, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी कविताओं के साथ ग्रेट स्टोन फेस को भी जीवित रखा। उनके काम के अर्नेस्ट को अपना रास्ता बना दिया और अपने सामान्य दिन के काम को पूरा करने के बाद अर्नेस्ट अपने कॉटेज
दरवाजे के सामने बेंच पर बैठकर पढ़ता। कविताओं को पढ़ने के बाद अर्नेस्ट ग्रेट स्टोन फेस को देखने के लिए अपनी आंखें ऊपर उठाएगा। ओ ग्रेट स्टोन फेस, ही said, is not this man worthy to be your likeness? The face seemed to smile, but did not answer. Now it happened that the poet, though he lived so far away, had not only heard of Ernest, but had thought much about his character and wished to meet this man, whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life. जैसा कि अर्नेस्ट ने कवि की रचनाओं को पढ़ा, उसने अपनी आंखें उठाई ताकि ग्रेट स्टोन फेस को देखे और उससे पूछा कि क्या कवि इसकी समानता रखने के योग्य है। पहाड़ ऐसा दिखाई दिया जैसे वह मुस्कुरा रहा हो, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी ओर यद्यपि कवि घाटी से बहुत दूर रहता था, वह अर्नेस्ट के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता था और उसने अपने चरित्र में इतना विचार रखा था कि वह अर्नेस्ट से मिलना चाहता था और जो अपनी जीवन जीने के तरीके में इतना बुद्धिमान था। One summer day, therefore, he arrived at Ernest's door, where he found the good old man holding a book in his hand, which he read, and then, with the finger between the leaves, looked lovingly at the great stone face. गर्मियों का समय था। वन फाइन डे, एक अच्छे दिन, कवि ने अर्नेस्ट को दरवाजे पर देखा, जहाँ उसने अर्नेस्ट को किताब पढ़ते हुए पाया और उसने देखा कि पत्थरों के बीच उंगली से ग्रेट स्टोन फेस को देख रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था और वो बड़े प्यार से उन्हें देख रहे थे। गुड इवनिंग, सेड द पोएट, कैन यू गिव मी अ ट्रैवलर अ नाइट्स शेल्टर? ग्लैडली आंसर्ड अर्नेस्ट, and then he added, smiling, I think I never saw the great stone face looked so hospitably at a stranger. कवि ने अर्नेस्ट को ग्रीट करते हुए गुड इवनिंग कहकर वेलकम किया और उसे एक रात के लिए वहाँ रुकने के लिए कहा। अर्नेस्ट सहर्ष सहमत हो गया, इट मीन्स वो राजी हो गया, क्योंकि कवि ने उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ कहा कि उसने कभी भी ग्रेट स्टोन फेस का स्वागत किसी अजनबी को इतने धीमे और विनम्रता से करते हुए नहीं देखा। द पोएट सैट डाउन बिसाइड हिम एंड he and Ernest talked together. Never before had the poet talked with a man like Ernest, so wise and gentle and kind. Ernest, on the other hand, was moved by the living images flung out of the poet's mind. कवि अर्नेस्ट के पास बैठ गया। उन्होंने थोड़ी देर बातचीत की। अर्नेस्ट जैसे बुद्धिमान, सौम्य यानी जेंटल और दयालु यानी काइंड आदमी के साथ बात करने का मौका कवि को कभी नहीं मिला था। दूसरी ओर अर्नेस्ट आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसने कवि की बात को इतनी शिद्दत से सुना, यानी इतने ध्यान से वो पूरी उनकी बात सुनी।